हाँ जी जल्दी भैया थोड़ा सब साइड पे Kindly take your seat as our honorable law minister has to go. We are just writing because there is one public meeting in Faridabad. So I welcome all of you to this inauguration ceremony of the International Photography Exhibition on Narendra Modi. Okay. A champion of prosperity and world peace. This exhibition is part of the global celebrations of the 74th birthday of our most beloved leader, Shri Narendra Modi. I am extremely grateful to Honorable Dr. Justice K.G. Balakrishnan, former Chief Justice of India, Honorable Mr. Indresh Kumar ji, Member National Executive Committee of RSS, Honorable Mr. Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State for Law, Independent Charge, not only law, justice also, I am sorry, and Parliamentary Affairs, Honorable other distinguished diplomats coming from different parts of the country, including the Ambassador of Republic of Uzbekistan. I was one of the international observers for the election of the President of the Uzbekistan last time. Mr. Nazar Mirjan Mohammed, Charge d'Affaires Embassy of Iraq, Charge d'Affaires of Embassy of Lesotho, Minister Consular. Kindly take your seat. Take the seat ऊपर है ना? Please. Sorry sir. And the Ambassador of Venezuela. And we are thankful that you are also spared your valuable time and you are the unique because we were supposed to give representation in the first line. So you have enhanced this diet by your kind presence. And the Minister Consular Embassy of Sri Lanka, Consular Embassy of Iraq, Consular Embassy of Uzbekistan and other, because sometimes my staff could have not given the proper list. I am extremely happy that you all have spared time for the inauguration of this international photography exhibition on Narendra Modi, a champion of prosperity and world peace. I am extremely thankful that all of you have come to enhance this inaugural ceremony. I am delighted to mention that this international exhibition has put on display rare photographs on the life of Sri Narendra Modi. These include his childhood,
and his activities as an RSS Pracharak, we have tried to capture moments of his pioneering work for the welfare of the people. We had to go great lengths to convey his unique style of connecting with the masses and the glory of his electoral victories. You will be also able to see the glimpses of Modi ji's strength as Chief Minister for 4 terms, his presence on the national landscape, his leadership as the Prime Minister for the 3rd consecutive term, and his advancement as a world leader. We have seen flashes of his seminal role played to bring about global peace and prosperity, which I have tried to share with all of you. The work done by him on the international landscape has been acknowledged by different countries by bestowing on Modi ji their highest civilian honor. Some of these photographs have been drawn from the 672-page biographical book published by UK publishers and distributors. London, titled Narendra Modi, a charismatic and visionary statesman, authored by me and eminent British author Ms. Sarah J. Marchington. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has also found our work to be dispassionate, honest and exhaustive. He has lauded the effort and has signed on the opening page of the biography on July 13, 2017 as a token of commendation. He also appreciated its revised 2nd edition on July 16, 2019 and inscribed Vande Mataram on its opening page. This exhibition has also put on display some of the unique and insightful photographs used in the book titled Narendra Modi, Harbinger of Prosperity and Apostle of World Peace, authored by me and eminent American author and poet Ms. Elizabeth Warren. The captions of the photographs in this international exhibition are in Hindi, English, Arabic, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Mandarin, Russian and Spanish languages to enable our friends from overseas countries to understand the occasion and the contents of the photographs. There is no doubt that Shri Narendra Modi is the greatest leader alive who is born on Indian soil. He has won the hearts of people and has broken the barriers of religion, caste and class. Modi ji's approach against terrorism and corruption has further enhanced his stature. He has emerged as a global peacemaker. The world watched with interest that Modi government abrogated Article 370 of the Constitution of India and peacefully settled the controversial Kashmir dispute within a few weeks. This was followed by the peaceful acceptance of the judicial resolution of one of the country's longest standing legal battles, the court battles surrounding the Ram Mandir at Ayodhya, which is the birthplace of Lord Rama, was a potential minefield. But the decision of the Honorable Supreme Court has been received by all sides without any sort of obvious inharmony. On the electoral forefront, Modi ji has proven himself to be the most charismatic and popular mass leader since India's independence. The first Prime Minister of India to be born after independence, he is also the first non-Congress Prime Minister to be re-elected
for a second term and now even for the third term. Additionally, he has emerged as an international statesman, an economics engineer, and an architect of welfare schemes and transparent governance. On the world stage, Modi ji has been instrumental in brokering peace in the regions of conflict. Modi ji has become an important international figure in the multipolar world. The personal, political and diplomatic efforts of Modi ji are likely to be instrumental towards the resolution of the Russia-Ukraine conflict. Modi ji is poised to bring about peace in that part of world which has been plagued by war for more than 2 years now and which has resulted in painful deaths of thousands of soldiers and civilians of Russia and Ukraine. For such unprecedented contribution towards world peace and cessation of an ongoing ruthless war, Modi ji may be persuaded by Norwegian Nobel Committee to accept the Nobel World Prize for Peace in near future. Today, India's view on crucial diplomatic and geopolitical issues are deliberated upon in other countries, which shows the importance gained by India under Modi ji's leadership. If Modi ji speaks, world leaders listen as he speaks the language of the peace and harmony. For these regions, people across the world are curious to know more about the journey of Modi ji, and this is a small initiative of ours in that direction. Thank you once again for joining the inaugural ceremony in physical and virtual mode. Jai Hind. Now I will request the distinguished our guests who are on the dais to light the lamp. मैडम थोड़ा हट जाइए सामने सर एक सिंगल कैमरा रूम कर कोई बात नहीं एक मिनट में आ रहे हैं। फिलहाल ये रुकते थोड़ी हैं। कोई बात नहीं घड़ी थोड़ी रुकती है। शुभ काम में दे रही हूँ शुभ काम हो गया Please go to come. And now he will join. Other diplomat is here. मैम मैं उधर चले जाऊँ। But the present minister is the people's minister. Although one thing more, I have not taken till now anything. Others may have given me. Thank you, sir. This Agarwala is a very, you can say, famous advocate in Supreme Court. He had been president of the Bar Association, Supreme Court Bar Association. Thank you, sir, आदिश अग्रवाल जी. देखिए, आज का जो फंक्शन है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है. आइए सर, हर्ष मल्होत्रा जी आइए सर. ताली तो बजा दो भाई. थैंक यू. लगाते हैं. अभी भी हम देख रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन और नरेंद्र मोदी, ए चैंपियन ऑफ
प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड पीस। और उसके लिए जो मंच सजा हुआ है, उस मंच पर हमारे माननीय इंद्रेश जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, श्री नजर मरीजान मोहम्मद, एम्बेसी इराक एम्बेसी, एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला, एम्बेसी ऑफ श्रीलंका के प्रतिनिधि, हमारे आदिश अग्रवाला जी, हर्ष मल्होत्रा जी जो मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हमारे भुवनेश्वर कलिता जी, सभी मंच पे और उपस्थित गणमान्य हमारे अतिथि। मुझे ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेना, भाई साहब से परमिशन ले ली थी इंद्रेश जी से, भाई साहब बैठे हैं, वो थोड़ा बोलेंगे। मुझे फरीदाबाद जाना है, देयर इज ए मीटिंग एट 7 o'clock, लेकिन आजकल ट्रैफिक इतना रहता है कि 1.5 घंटा लगेगा, ऐसा मुझे बताया गया है, और मीटिंग एकदम 7 बजे शुरू होगी। ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती का मतलब जो हाथ से काम करता है, जो लकड़ी के साथ काम करता है, औजार से काम करता है, कोई जूती बनाता है, कोई घड़ा बनाता है, ये जितने भी हाथ के हुनर को जानने वाले कारीगर हैं, उनके लिए विश्वकर्मा जयंती का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण, वो निर्माण के हमारे देवता भी हैं, हमारे ऋषि भी हैं, उनका आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती। पूरे संसार को बनाने वाले, पूरे संसार का निर्माण करने वाले ऐसे विश्वकर्मा जयंती का आज दिन है। साथ में हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री, उनका भी जन्मदिन है। हाँ, ये बता दीजिए। तीसरा, आज पूर्णिमा भी है, ये भी बड़ा विषय है। और चौथा, अभी जिसका आदेश अग्रवाला जी जिक्र कर रहे थे, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पहले 52, 57 और 62 में पंडित नेहरू के नाम है। उसके बाद इंदिरा जी बनी 3 बार प्रधानमंत्री, लगातार नहीं बनी। उसके बाद कोई 3 बार भी नहीं बने। अटल जी बने तो उनका पीरियड कम बेसी रहा, लेकिन लगातार 3 बार जो प्रधानमंत्री बनने का पंडित नेहरू के बाद जो इतिहास में अवसर आया, वो अवसर नरेंद्र मोदी जी के खाते में लिखा गया। वो भी लिखा था ना, वो तो आप भविष्यवाणी करो, ये तो जनता बन रही है, वो तो आप भविष्यवाणी करो। इसके लिए आज का दिन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और एक और कि तीसरे कालखंड में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके 100 दिन पूरे होने का भी अवसर आज ही। We have completed 100 days. That is also good occasion. तो कितना ओकेजन एक साथ आ गए, और ये एग्जीबिशन का अवसर भी दे दिया आदिश अग्रवाला जी ने। तो सारे फोटो नजर आ रहे हैं, कोरोना कालखंड के फोटो मोदी जी के नजर आ रहे हैं, दाढ़ी के फोटो भी नजर आ रहे हैं, जिसमें लगता है कि मोदी जी ऋषि हैं। लगता है, नहीं लगता आपको? तो आदिश अग्रवाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई, कितना अच्छा इन्होंने कलेक्शन किया है। इसलिए मैं आदिश अग्रवाला जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है देश और दुनिया में, उसके लिए मोदी जी को भी बधाई देते हैं। और ऐसा आगे भी वो हमारा नेतृत्व करते रहेंगे, इसके लिए भी
हम मंच से उनको पूर्ण ये कहते हैं कि ये आपका कालखंड तो अच्छा गुजरेगा ही, लेकिन जो आदिश अग्रवाला जी ने भविष्यवाणी की है वो 29 का कालखंड भी आएगा क्या है? आएगा 100% आएगा। ये आदिश अग्रवाल की जबान है, दूसरे के बारे में जो बोल देगा वो पक्की होगी, अपने बारे में नहीं पक्की होगी। तो जो भविष्यवाणी की है वो भी फलेगी और भारत में मोदी जी ही नेतृत्व करते रहे, ऐसी मंच से शुभकामनाएं हम आज देते हैं नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Ambassador of Republic of Uzbekistan to now I will request His Excellency Mr. Sardor Rustam Bey to His Excellency Ambassador of Republic of Uzbekistan. He will address us on the occasion of 74th birthday of our beloved Prime Minister. No, now first you. Iraq. Oh, yeah. Sorry. Sorry. Mr. Rajar Mirjan Mohammed, charged the affair of Embassy of Iraq. Please. Thank you so much. Good evening, everyone. I'm very pleased to be with you and join you in this celebration. And I want to thank Mr. Adish to invite me and all diplomatic missions to attend this exhibition. I cannot add anything for your knowledge about very special person like His Excellency the Prime Minister, Mr. Modi. But I was very excited when I invited to this exhibition to discover and add to my knowledge about this personality and the great person. We are in Iraq, we have a long historical relation as an Iraqi people with the Indian people. So I am very pleased to be with you and join you in this celebration. And in my experience, I want to tell you a very simple example. It's very hard for you to go with your family to travel anywhere, and you have to be a leader and take the decision. If you be a leader of 10 people, it's easier than to lead 50 people. And this great country supposed to have a great leader. And I think everyone can see the development of India within the last 10 years with the leadership of His Excellency Mr. Modi. So I want to thank you again to join you in this exhibition. Thank you so much. Thank you, Excellency. Now I will request His Excellency the Ambassador of Venezuela. She will be also giving her kind words on this occasion. Venezuela. Yeah? Yeah? Namaste. Om Sai Ram. I am very happy in this moment, in this divine opportunity for the
special exhibition about Prime Minister Narendra Modi. I only want to tell, I pray God for long life for Narendra Modi, a long life for all people present in this evening. Thank you so much. Thank you. Now I will request our people's representative, the people's minister. Although normally we say this thing to all the elected leaders, but Mr. Malhotra ji, Mr. Harsh Malhotra is really a very, very saintly person who has been inducted in the central government by Modi ji as a Minister of State for Corporate Affairs and Road Transport and Highways. Now I will request him to make a speech. तो दिक्कत आती है। भारत माता की मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत आदरणीय, जिनसे हर समय हमें प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय इंद्रेश जी, डॉक्टर जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी, मिस्टर भुवनेश्वर कलिता जी, और जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतनी महत्वपूर्ण और मैसेज देने वाली एक एग्जीबिशन आदरणीय मोदी जी के लिए लगाई है। मैंने बहुत थोड़ा सा अभी आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी के साथ दर्शन किए और कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ। इट इज़ रियली वेरी इम्प्रेसिव एंड द डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस। मेरे को जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था तो मुझे मालूम है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और पूरा देश, सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस को 15 दिन के लिए 2 अक्टूबर तक, जब महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस होता है, इस पखवाड़े को, इस फोर्टनाइट को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। और इस बार का जो स्वच्छता और एक पेड़ माँ के नाम इस सेवा पखवाड़े का थीम है। सही मायने में आदरणीय मोदी जी का जो मैं यहाँ पर एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफ्स देख रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में उनके जीवन का चित्रण मेरे मन में आता जा रहा था। लगभग 23-23.5 वर्षों का उनका सार्वजनिक जीवन एक राजनेता के रूप में, और उससे पहले का उनका संगठन के प्रति समर्पण, पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर रह करके संगठन मंत्री, महामंत्री, गुजरात के अंदर संगठन के कामों को लेकर के हिमाचल, पंजाब के प्रभारी के रूप में, और उससे पहले का उनका जीवन, उससे पहले का जो इनका जीवन था, वो अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो मुझे मालूम नहीं है कि वो चित्र यहाँ पर है या नहीं है। आदिश जी, हिमालय पर एक योगी और तपस्वी के नाते एक लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया, और उससे पहले की जीवन की विषमताएं, जीवन में आर्थिक स्थिति उनके और उनके परिवार की, रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की मदद करना चाय बेचने के लिए, तब से लेकर के और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उनका उभर के आना, और उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन एक आध्यात्मिक पुरुष से लेकर के और एक राजनीति में महापुरुष तक पहुंचना,
मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है किसी एक व्यक्ति के जीवन का, और उनके जीवन के चित्रों का यहाँ पर प्रदर्शनी लगाना एक और भी बहुत महत्वपूर्ण काम और महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आती है। मैं इस बात के लिए आदेश जी को, डॉक्टर आदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ऐसा मानता भी हूँ कि हम सब लोग भी जो यहाँ बैठे हैं और जो लोग आदरणीय मोदी जी के जीवन व्रत को इस चित्रों के माध्यम से, इन पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे, तो हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि अपने जीवन में विभिन्न आयामों में किस तरह का जीवन, कितनी शुचिता के साथ उन्होंने जीवन जिया है। और हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होगा। आज अगर विश्व यूक्रेन और रशिया के युद्ध में शांति की उम्मीद करता है तो वो नरेंद्र मोदी से करता है। आप देखिए, जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और हमारे 22,000 बच्चे जो पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को विश्व के मानचित्र पर इतना महत्वपूर्ण बना दिया, इतना सम्मानजनक बना दिया कि वो 22,000 बच्चे अगर यूक्रेन से वापस भारत आने थे तो उस बात के लिए केवल एक फ़ोन से रशिया युद्ध विराम की घोषणा करता है। 72 घंटे तक एक पटाखा भी नहीं चलता है, और न केवल भारतीय स्टूडेंट्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी तिरंगा लगा करके उस क्षेत्र को क्रॉस करते हैं और भारत आ जाते हैं। तो ये ताकत तिरंगे को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और अभी भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए तो आप सोचिए, इतना देर से चलता हुआ युद्ध भी रशिया ने युद्ध विराम किया, और जब तक प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में रहे तब तक युद्ध विराम रहा। और न केवल पूरा देश पूरा विश्व, बल्कि विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश भी इस बात को आज मानने को तैयार हुए हैं कि अगर कोई विश्व में शांति लाने के लिए कोई एफर्ट्स अगर कोई कर रहा है और उसकी बात मानी जा सकती है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं। मैं आदेश जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इस पुनीत अवसर पर, जिस दिन हम अपने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सेवा, स्वच्छता और वृक्षारोपण से कर रहे हैं, हमारी इस धरती पर भी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से दिक्कतें और परेशानियां और असमय पानी का बरसना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, वो ख़त्म हो, तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर ये सब सेवा के काम करें। और एक बार पुनः आदेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें यहाँ बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Charge the affair of Embassy of Lesotho. He will be addressing us on the occasion of 74th birthday of our Prime Minister. Respects to my colleagues on the dais and off the dais, everybody here, good evening. Not all of us are going to be able to speak today on Narendra Modi's birthday, 74th birthday, but we can all sing. So let's sing to the Prime Minister's happy birthday. Today, all of us, let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Modi. Happy birthday to you. Hip hip. Hip hip. Ladies and gentlemen, we are celebrating the birthday of a great man. You are lucky to have a great leader in Prime Minister Modi. I surely want to thank the organizers of the event for having invited me to be part of this big celebration where we are celebrating the birthday of a visionary leader, a leader who has displayed his leadership. For us in Africa, we look at him for leading South cooperation. He's a leader. We also applaud him for his leadership, for striving for the inclusion of Africa in the G20. So in him, we see a leader who is going to transform the whole world, who is going to unite the whole world. And we wish him all the best in his leadership and wish him good health and happiness and wish him success in his leadership role of India. Lastly, let me thank the organizers for taking us through the history of Modi in pictures. Pictures tell it all. And you should continue with your good work, and we wish you all the best. And surely thank you and continue doing this work to not just with Prime Minister Modi only, but all the leaders that have transformed India. Please continue doing this to them. Thank you very much for listening to me, and we wish Prime Minister Modi a happy birthday. Thank you. Now I will request Adarniya Bhai Sahab, everyone, whether he or she is of 5 years old or 95 years old, he is Bhai Sahab of everyone, Indresh Kumar ji, who had fought for bringing peace, who has fought for bringing glory to India. Please. चीफ जस्टिस का कहना है कि बैठकर बोलिए आप, उनको भी सुविधा हो जाएगी। 74 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 75वां वर्ष भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विश्व के लोकप्रिय मोदी जी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग अलग प्रकार का याद आ रहा है, उसको स्मरण करता हूँ। लोकसभा चुनाव होकर गए, सरकार का फॉर्मेशन हुआ। मैं रांची में एक कार्यक्रम में था, माइनॉरिटी से जुड़ा कार्यक्रम था। मुसलमान बड़ी संख्या में थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन वर आल्सो देयर, कुछ बुद्धिस्ट भी थे, सिख भी थे, आदिवासी भी थे, बाकी हिंदू समाज इन जनरल, इंडियन सोसाइटी थी। मैंने उनसे हंसते हंसते ऐसे प्रश्न किया, आप खुदा की, ईश्वर की, गॉड की मानते हैं या सियासी और मजहबी नेता की मानते हैं? तो सब ने बुलंद आवाज में कहा खुदा की मानते हैं। मैंने कहा अभी एक ताज़ा घटनाक्रम हुआ। मैंने कहा आप सब ने सियासी और मजहबी नेताओं की मानकर जिन 18 पार्टियों को जिताने की कोशिश की, खुदा ने उनको सरकार नहीं दी।
दे आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट। और जिनके लिए आपने हराने की पूरी कोशिश की, भगवान ने उनको सरकार दे दी। अब आप फैसला करिए कि भगवान किसको चाहता है और इंसान किसको चाहता होगा। तो आगे क्या करोगे, भगवान की मानोगे कि नेता की मानोगे? तो उस समय तो सबने हाथ खड़ा करके कह दिया खुदा की, गॉड की मानेंगे। बाद में सोचा होगा कि क्या हुआ है, परंतु द रियलिटी मैंने इसलिए याद किया, सन 1975 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में वो गुजरात के इंचार्ज बनकर आए थे और मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इसको उस समय पंजाब संघ में कहते थे, इसका इंचार्ज बनकर गया था। 30 दिन हम इकट्ठे रहे। वो कुछ ना कुछ अलग प्रकार के सोच के थे। वो कहते थे जब करना है तो इतना बेहतरीन करो कि आनंद ही आनंद आए। बोझ समझकर मत करो, मजबूरी समझकर मत करो, ज़रूरत भी समझकर मत करो। इसलिए करो कि उससे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से ही वाज फ्रॉम बाई हैबिट्स उस समय के ध्यान में आते थे। हम हंसते हुए कहा करते थे, शायद ईश्वर ने आपको कुछ ऐसा दिया है जो अद्वितीय है। कब प्रकट होगा और कैसे प्रकट होगा ये तो हम नहीं जानते, परंतु इट इज़ डेफिनेट कि यू आर विद डिस्टिंक्शन, आप किसी विशेषता के साथ हैं और अलग से हैं। आज हम सब अनेक दिनों को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, परंतु मैं एक और छोटी सी अलग प्रकार की बात कहूँगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, परंतु उनके होमवर्क में और ऑफिस वर्क में एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो अपने ऑफिस वर्क के लिए होमवर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको सफलता मिलती है। बहुत लोग होते हैं होमवर्क कम करते हैं, इसलिए ऑफिस वर्क में असफल हो जाते हैं। उनका होमवर्क बहुत अधिक होता है, इसलिए ऑफिस वर्क में एक सक्सेस नज़र आती है। मुझे छोटा उदाहरण देना हो, G20, उसमें अफ्रीकन यूनियन उसकी मेंबर बननी चाहिए। वो तो अनेक देश थे, केवल देश ही उसके मेंबरशिप हो सकते थे, ग्रुप नहीं हो सकता था। उन्होंने प्रपोज़ल डाला कि अफ्रीकन यूनियंस को G20 का मेंबर बनाया जाए और तुरंत स्वीकार कर लिया गया। पर प्रश्न खड़ा होता है कि उन्होंने यह जो ऑफिस वर्क था, सक्सेसफुल ऑफिस वर्क, इसके लिए होमवर्क कितना किया था। जितने भी देश थे सबके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने पर्सनली टॉक किया था। और क्यों बना लेना चाहिए उस एज ए ग्रुप उनको, इसके लिए भी उन्होंने टॉक किया, क्योंकि प्रश्न तो थे कि उनको बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अलग अलग देश को बनाने की कोशिश करते तो दे कैन नेवर एंटर इन द G20, वो G20 में अभी एंटर नहीं हो पाते। परंतु वो एज ए ग्रुप आ जाएंगे तो दुनिया के अंदर एक और चीज़ होगी, और वो ये होगी कि अलग अलग देश जीना और उन देशों के अंदर जो संघर्ष होते हैं इन पर भी रोक लगेगी। मिलकर देश जीने की भी एक छवि दुनिया के अंदर बन सकती है। हर समय एट वार होना, एट एवरी टाइम एट हेट्रेडनेस होना, तो नो हेट्रेडनेस, नो वार, बट लिविंग टुगेदर पीसफुल्ली फॉर ए प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर ए हारमोनस वर्ल्ड। इसलिए ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर इतने देश हारमोनस बनकर जी सकते हैं, वाई नॉट द वर्ल्ड।
तो इसलिए उनका होमवर्क आप ध्यान करिए इस सफलता के पीछे कि अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप, केवल उन्होंने प्रपोजल रखा, नो डिस्कशन, एवरीबॉडी एक्सेप्टेड इट, और वो G20 ही बना रहा, G21 नहीं हुआ आज तक, वो G20 ही है, और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज बिकम द मेंबर ऑफ G20। तो उनके जीवन से, उनके लाइफस्टाइल से ये जो होमवर्क प्रिपरेशन है फॉर द सक्सेस ऑफ द थिंग्स, इसको समझना चाहिए। मैं एक दूसरा और एग्जांपल देता हूँ। कोविड एक वायरस था, बाय द चाइना, मेड बाय द चाइना, लॉन्च्ड बाय द चाइना ऑन द वर्ल्ड। उसने दुनिया को बताया था कि वो सिद्ध करना चाहता है, ही इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उससे वो अर्थ में बहुत आगे है, इसलिए उसकी चकाचौंध से प्रभावित हो। वो ताकत में और दुनिया को सबक सिखाने में बहुत हिंसक है, इसलिए सब उससे डरो। तो प्रोस्पेरिटी को सल्यूट करो और उसकी राक्षसी ताकत के भयभीत हो। ऐसा चीन ने अपना एक करैक्टर बना लिया था। ये एक बड़ी चुनौती थी। चीन ने जब कोरोना को लॉन्च किया तो 2.5 साल के अंदर 70-80 लाख लोग दुनिया के खाए। अपने भारत के भी 4 to 5 लाख पीपल वर देयर जो कोरोना की बलि चढ़ गए। अब उसका फर्स्ट स्टार्ट और लास्ट स्टार्ट मैं बीच को छोड़ देता हूँ, टू बी शॉर्टन इन माई स्पीच। और वो देखिए, फर्स्ट स्टार्ट होप अगेंस्ट कोरोना, इट इज़ लेड बाय भारत, और वह थी हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, काढ़ा। तो फिर चाहे वाइट हाउस था, चाहे बर्किंघम हाउस था, सब काढ़ा पी पी कर ही जी रहे थे दुनिया के अंदर। मैं और आप भी काढ़ा पी कर जी रहे थे फॉर 7 months, मोर देन 7 months। परंतु उसके बाद जब दुनिया में चर्चा चली नीड ऑफ द वैक्सीन, तो 8 देशों ने वैक्सीन निकाला। अमेरिका ने भी किया, इंग्लैंड ने भी किया, रूस चीन ने भी किया, जापान ने भी किया। मुस्लिम देशों में से कोई देश नहीं है जिसने इसको किया। नो मुस्लिम कंट्री केम फॉरवर्ड फॉर ए वैक्सीन। तो ये सब ने किया। तो इनकी डोज 3000 to 8000 रुपीज़ थी पर डोज, और इसका रेस्क्यू कैपेसिटी, इसका रेटिंग क्या था कि जो सेव करेगा, तो लेस देन 70% रिजल्ट था कि 30% मौत तो पक्का होंगी, 70% तक लोगों को बचाया जा सकेगा। उस समय तक आप उस सारी ब्रीफ हिस्ट्री को देखिए। मोदी हैज नो स्टेटमेंट, मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। उनकी सहानुभूति के वक्तव्य हैं, देश में मॉरल और दुनिया का मॉरल ऊंचा करने के लिए वक्तव्य हैं, पर वो होमवर्क कर रहे थे, और इसलिए 5 स्थानों पर रिसर्च हुआ जिसको उन्होंने स्वयं फिजिकली नियंत्रित किया, देखभाल किया। अल्टीमेटली हैदराबाद और पूना, वहाँ दुनिया के देश बुलाए। मोर देन 74 कंट्रीज केम देयर एट पूना एंड हैदराबाद, और वो दोनों वैक्सीन लॉन्च की। और हमारी कीमत वैक्सीन की 270 रुपये, 282 रुपये थी, चीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थी। और उसकी जो कैपेसिटी थी, उसके अंदर जो सेविंग कैपेसिटी थी, मोर देन 92% थी। केवल 8% कैजुअलिटी मैक्सिमम हो सकती हैं, न तो 92%। परंतु बाद में जब वो लॉन्च हुई तो लगभग 100% गारंटी की थी। इसलिए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मानवता के अंदर, अगर उस समय दुनिया की मानवता का चरित्र किसी का था तो दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। और मानव जाति का रक्षण किया अगेंस्ट कोरोना किसी ने, दैट इज नरेंद्र मोदी। अब इट इज ए सैल्यूट टू भारत, क्योंकि उनकी जिंदगी का मिशन मोड का लैंग्वेज है नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। तो इसलिए
प्रथम देश है, अंत तक देश है, सदा देश है। इसके लिए जिएंगे करेंगे तो हम भी बनेंगे और देश भी बनाएंगे और दुनिया को भी बचाएंगे। तो इस अपने मिशन के साथ, इसलिए बहुत लोग कहते हैं मोदी इज मैन ऑफ मिशन, नॉट विदाउट मिशन। मैन विद मिशन है, मैन विदाउट मिशन नहीं। ये उनकी लाइफस्टाइल की अपनी एक विशेषता है। तो मुझे ये लगता है कि आदिश अग्रवाल जी ने यहाँ पर जो बहुत बड़ी फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई है, अब साल में एक बार 17 सितंबर इस ललित कला एकेडमी में, शायद तीसरी बार आए हम, तीसरी बार आए कि यहाँ हैप्पी बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने आते हैं। परंतु अपने यहाँ केक काटते नहीं हैं, क्योंकि मिठास की और मधुरता की और भाईचारे को काटा नहीं जाता है, उसको जिया जाता है। इसलिए यहाँ अपने यहाँ मिठाई बांटी जाती है, काट कर नहीं बांटी जाती है कि पहले तो मधुरता, मिठास और समरसता और सद्भाव का कत्ल करो, फिर उसका वितरण करो। इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ टू सेलिब्रेट हैप्पी बर्थडे इन द वेस्ट बट नॉट इन द ईस्ट। भारत और एशिया में ये स्टाइल नहीं है। यहाँ पर स्टाइल में ये है कि आप दिया जलाइए, बुझाइए नहीं। जब मौत होती है, अपशुगन होता है, तो दिया बुझाया जाता है। हैप्पी बर्थडे मनाया और दिया बुझाया, तो कोई हम दुख मनाने के लिए तो एकत्रित हुए, तो सैल्यूट करने के लिए आए, तालियां बजाकर गड़गड़ाहट के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बुझा दिया दिया। अब पता नहीं है आप खुश हैं कि गम में हैं, आप अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं, आप शुगन में जाना चाहते हैं कि आप खुशहाली में जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपने मिठाई का कत्ल किया कि काटो उसको, काटने के बाद बांटो। अपने यहाँ कहते थे कि काटने की ज़रूरत नहीं है, बांटिए, आप भी मधुर रहिए और दूसरे को भी मधुरता का संदेश दीजिए। इसलिए अपने आप में अपनी अपनी चीज़ों को मनाने के कस्टम्स हैं, परंतु अपने कस्टम्स के बारे में हमने सोचना चाहिए टू सेलिब्रेट नरेंद्र मोदी, कि हम उनको कैसे जिए, उनको क्यों जिए। तो अगर हम अपने कस्टम को जिएंगे तो मैं उसको एक बड़ी फिलॉसफी में अंत में कहकर बात समाप्त करूंगा। वी आर द ओनली नेशन, वी आर द ओनली सोसाइटी, वी आर द ओनली कल्चर, वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच एक्सेप्ट्स ऑल, विच रिस्पेक्ट ऑल। ऐसा दुनिया में कोई नहीं। हमने इस्लाम आया, ईसाइयत आया, पर्शियन आया, कुछ हान वान आए, सब स्वीकार कर लिए। जो भारत में जन्मे वो भी सब स्वीकार कर लिए, पर उन सबको स्वीकार करके सम्मान देकर और ग्रहण करने वाला दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं है, भारत है। गाना बना, चाहे पहले बना चाहे आज बना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, चीन में, अरब में, तुर्किस्तान में, अमेरिका, इसमें जापान में, जर्मनी में ये हिम्मत नहीं है वो इस गाने में से हिंदुस्तान काट के अपने देश का नाम लिख सके। हम ऐसा देश थे। अगर कल दुनिया को युद्ध मुक्त करना है, भारत को दंगा मुक्त करना है, अगर छुआछूत मुक्त होना है, अगर हिंसा मुक्त होना है, अगर नारी के शोषण से और अत्याचार से और अपमान से, असुरक्षा से मुक्त होना है, अगर प्रदूषण से मुक्त होना है, तो हम ही हैं जो दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। और तभी दिखा सकते हैं जब हम वैसा बनेंगे। तो अभी हर्ष जी बोल रहे थे कि पार्टी तो मनाती है, तो मैंने सोचा पार्टी वाली बातें उनसे सुनकर आपसे पूछ ही लूँ। आप में से जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगा चुके हैं, वो जरा हाथ खड़ा करिए, नीचे कर लिए। और जो वायदा करते हैं कि हम भी लगाएंगे और परिवार में और रिश्तेदारों में और दोस्तों में इस 15 दिन में कम से कम 15 वृक्ष माँ के नाम लगवा देंगे, ऐसे जरा हाथ खड़ा करो। कहते हैं प्लेज इज़ द बेस्ट फ्रेंड। संकल्प जो होता है ये सबसे अच्छा दोस्त होता है, आदमी को भटकने नहीं देता, उसको ऊर्जावान रखता है। और दूसरा,
हम 15 दिन में तो कम से कम ये पक्का करेंगे कि हमसे गंदगी नहीं होगी, स्वच्छता करिए या ना करिए। मैं कहा करता हूँ सारे हिंदुस्तान के लोग तय कर लें गंदा नहीं करेंगे तो स्वच्छ हो ही जाएंगे। तो इसलिए मेरे घर में, मेरे परिवार से, गली में, मोहल्ले में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, व्यापार में गंदा नहीं होगा। आई प्लेज फॉर दैट फॉर 15 डेज, 2 अक्टूबर तक बापू की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक। तो जो ये वायदा कर सकते हैं, रेज दी हैंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसलिए इस बात को कहेंगे कि सच्चा सेलिब्रेशन है। हम बनेंगे, देश को बनाएंगे, दुनिया को सजाएंगे और बचाएंगे। यह जो संकल्प है भारत के प्रधानमंत्री का, वह देश के 142 करोड़ लोगों का संकल्प बने। और भारत ने जो ग्लोबल एक्सेलेंस दिया है दुनिया को, उसको स्मरण करते हुए, जिसको प्रधानमंत्री ने नए शब्द दिए हैं, वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहा उन्होंने, वर्ल्ड इज एन वन फैमिली नहीं कहा, सबका साथ सबका विकास, इस रूप में उन्होंने उसको कहा है। इसलिए आज देश के अंदर इसकी ज़रूरत है। हर धर्म के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग अपने अपने रास्ते से चलें, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों से, परंपराओं से चलें। दूसरे की पूजा और परंपरा में दखल नहीं दें, आलोचना नहीं करें। नो लव जिहाद, नो लैंड जिहाद, नॉट इवन नो कन्वर्शन, ये ना हो। और इसलिए सबका सम्मान करें। और सबका सम्मान करते समय में आज जब उनका हैप्पी बर्थडे घर पर मनाया जा रहा था, तो एक गाय का बच्चा उनके पास था, बछिया, जिसका नाम रखा उन्होंने दीप ज्योति। ऐसा उसी समय से थोड़ा पहले मुझे उत्तर प्रदेश में से एक मौलाना का फ़ोन आया था। मैंने कहा लिंचिंग मुक्त भारत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लिंचिंग फ्री इंडिया, लिंचिंग फ्री हिंदुस्तान। तो उन्होंने कहा हो सकता है, आप ही बताइए। तो हमारी चर्चा हुई। मैंने कहा नो लिंचिंग ऑफ काउ, बाकी किसी भी जानवर को मारिए, दुनिया में कोई संवेदनशीलता नहीं है, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, केवल एक ही के लिए आहत होती हैं, गाय के लिए। तो नो लिंचिंग ऑफ काउ, नो लिंचिंग ऑफ मैन, वी कंडेम बोथ, सो मेक भारत लिंचिंग फ्री। नो लिंचिंग ऑफ काउ, नो लिंचिंग ऑफ ए मैन, वी कंडेम बोथ, सो मेक, आओ मिलजुल कर भारत को लिंचिंग मुक्त बनाए। तो यह आप सबसे मैं अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री, वो मुझे यहाँ आते समय में, वो बाई द वे मैं टेलीविज़न देख रहा था, तो उसी समय वो कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। तो मैंने कहा कि एक नया मैसेज मिल गया देने के लिए। तो लिंचिंग मुक्त भारत के लिए हम सब इस एक वाक्य को मिशन मोड में ले जाएं, तो मुझे लगता है इट विल बी द बेस्ट वे टू मेक ए हैप्पी बर्थडे ऑफ द ग्रेट मैन नरेंद्र मोदी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भाई साहब, कोई आपने ऐसा प्रोग्राम देखा कि जहां दीपक शुरू में जो लाइटिंग हुई प्रोग्राम चलने में, आखिर तक चलता है? ये आखिर तक चलेगा। यह है मोदी जी का कमाल। मेरा कमाल नहीं है, ये मोदी जी का कमाल है। धन्यवाद मल्होत्रा साहब, आपने, मुझे पता है कि आज आपके कितने प्रोग्राम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I will request Mr. Bhuvaneshwar Kalitha, a very seasoned member of Parliament, who is the panel vice chairman of Rajya Sabha also. He has held so many positions in ministerial post. Please, sir.
Thank you. Organized this international photo exhibition based on our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji with a theme that international exhibition on Narendra Modi, a champion of prosperity and world peace. When we analyze the life and activities of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, in every state which our Honorable Reverend Sri Indrish Kumar ji has very aptly described, he is always the champion of prosperity. Maybe he state, the nation and the international arena. The prosperity is his theme of life, and today, in last 1 decade, we have seen the changes in every state of this nation and every part of this nation. Wherever we go, we see a new India in terms of infrastructure, in terms of communication, in terms of love and affection between the people of all communities. Our Prime Minister had shown a way which has been described by Aditji in his address, that he is the champion of world peace. Today, if there is one person on whom the entire international population, international communities have faith and confidence, it is on Sri Narendra Modi ji. And the reason that when we remember, and we remember very well, that when an Indian Prime Minister goes abroad to visit Israel, he doesn't go to Palestine. And when another Prime Minister goes abroad, he visits only Palestine, not Israel. Sri Narendra Modi ji visited both Israel and Palestine. Both are conflicting countries together. Recently we have seen the war-torn Russia and Ukraine arena. Our Prime Minister not only visited Russia, but he visited Ukraine, which was a surprise from the world communities, because the top leaders of other countries, they either go to Ukraine or go to Russia. They do not go to both the countries. And here we have a great leader, a world leader, a leader of world peace, Sri Narendra Modi ji. He went to both Ukraine and Russia. Not only that, wherever he goes, he makes an impression. Be it G7, be it G20, and he has made a name by organizing the G20 conference in Delhi, and where the African Union, at the initiative of Narendra Modi ji, became a member of G20. So these are certain achievements. We know during the COVID pandemic, he was taking the lead. He has shown hope to the world, hope against hope, that world can survive. He has shown example by making the vaccine. 4 vaccines during that time has been given. And those vaccines, India-made vaccines, were made available to entire countrymen, entire nation, free of cost. He even helped our neighboring countries by giving free vaccines to those countries, which other countries
were not prepared to give. So this is the humanity. This is the humanitarian aspect of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has shown again and again to the world community, to us. He has become an example of peace, an example of prosperity. With this, I wish our Honorable Prime Minister, the great leader, a very, very happy birthday. Thank you very much. Now, our people's judge, Justice K.G. Balakrishnan, who has had the opportunity of serving all positions, civil judge, additional district and session judge, High Court judge, Chief Justice of High Court, Judge of Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court, second longest period in the history of Supreme Court, 3.5 years, and also acting governor of Gujarat, the birthplace of the Honorable Prime Minister, and National Human Rights Commission, what not. And he is our guardian. He blesses us all the time. At the time of need, he stands with us. Thank you, sir. Please. Mr. Adish Agarwal, Sri Indresh Kumar, and Bhubaneswar Kalila, the member of the parliament, and the Nazar Mirjan Muhammad Sharif Jafari of Embassy of Iraq, His Excellency, and Mr. Tabang Linus Kulomo, the Sharif Jafari of Embassy of Lesotho, His Excellency, distinguished His Excellency, the Ambassador of Venezuela, distinguished guests, ladies and gentlemen. This is the third time, I think, the photo exhibition of by Mr. Adish Agarwal, a great fan of our Prime Minister. He spent time, his energy, money, everything for propagating the ideals and ideas of our Prime Minister. It is something unique. It cannot be. And I am sure you can, very shortly, you can find a wax museum of Mr. Narendra Modi by Mr. Adish Agarwal. That may be his next idea, I feel. But first of all, I wish a happy birthday to our Honorable Prime Minister. Then all distinguished guests have spoken in detail about the contribution made by our great Prime Minister. So it is something for the forgotten lot, the marginalized section, the poor people of this country. The only hope is the Prime Minister and his team who work for this country and the poor people. That is something unique. You see that the neighboring countries withered away for some reason or other. I don't want to name the neighboring countries who have got series of problems. But Indian democracy stood firmly. No problem for our economic problem. No problem we have got. Our democratic system, election system, all constitution institutions are functioning well. Something great. It is here. It is because our teamwork that is more important. That is, we should be proud to be an Indian, to live in this country. So I don't want to talk
more on the subject, because I'm sure that you are all anxious to see the photographs. So we have to go and see the photographs. I wish all well and goodness to all of you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, my lord. Mr. Gaurav Sharma ji, kindly come here. I will felicitate you. And this Mr. Vikas Chandra San, please bring your come here. This is a handmade photo of Modi ji. Now I am thankful, Mr. Ashok Soni ji. I will require your 3-4 minutes. You have to speak. You are in charge of the lawyers, so kindly speak for 4-5 minutes, please. Ladies and gentlemen, well, I've just arrived here. I don't know the system as to what has happened so far and what is happening. Of course, the photography, this is for the second time. You are a person who can imagine what has happened earlier and what will happen later. And this probably is the second year that my learned friend has had such a good photography exhibition of our great Prime Minister. It's his vision that we are gathered here to see the good photography of our Prime Minister, and I think let the show go on. We will also invite more advocates because the courts are around, and I think we'll have them come here and to see the good show that you have put up. Thank you, Adish ji. Thank you. Now we will visit our honorable guests. They will be observing the photograph exhibition. National anthem will be there, and after the photograph exhibition visit, again we will reassemble here, and then it will be, now it was the leaders, diplomats' birthday celebration, then it will be people's celebration. National anthem.